Dear all, I am starting a chapter of your class, Princess September. September is the name of a princess. The king and queen of Siam has 9 daughters. For the queen, it was confusing to remember so many names. So the king decided to call them by the names of the month. The youngest was named September. It is very clear. Now, the king had a peculiar habit. Instead of receiving gifts on his birthday, he gave them. Now, one year he gifted his daughters each with a green parrot in a golden case. The princes were glad. They spent an hour every day with them. The parrots could say, God save the king and pretty Polly. God save the king and pretty Polly in 7 languages. But Princess September found one morning her parrot dead. She wept and wept. She could not be comforted. The queen told the mad servants to put her to sleep without supper. The maids wanted to go to a party, so they put Princess September to bed as soon as possible. Thus, the princess was left alone crying in her bed. उसे रोता हुआ छोड़ दिया गया और उनको जो पसंद था पार्टी में, उनको जो बर्थडे में जो पार्ट गिफ्ट पसंद था, उनके पापा को वो भी बहुत अच्छी पसंद थी और उतना ही नहीं, उनके जो पैरेट थे, वो पैरेट को बोलने की आदत थी बार-बार एक ही सेम चीज़ को और वो डेड हो गया और अब यहाँ बात आ जाती है कि उनके मैड को जाना है पार्टी में और वो जल्दी से जल्दी चाहती है किसी तरह सितंबर हो जाए ताकि हम चले जाएँ, पार्टी में चले जाएँ। नाउ द प्रिंसेस सॉ अ लिटिल बर्ड कम इनटू हर रूम। वो बर्ड नहीं आया जो उसे गोल्डन केज में उनके पापा ने पैरट दिया था। अब दूसरा बर्ड उनके रूम में आ गया। इट बिगैन टू सिंग, इट sang about किंग्स गार्डन, द गोल्ड फिश, द willow tree, etc. The princess forgot about Super. The little bird gave the princess a bow. The bird asked her if she would have it in place of her parrot. The bird agreed that it was not pretty. The princess clapped her hands with delight. The bird sang, and princess went to sleep. The next morning, the bird wished the princess good morning. The princess offered it food with her own hands. She bathed it in her saucer. The maids of honor were surprised. They had not heard earlier the sweet song of such a bird. The princess took the bird to her 8 sisters. There are many sisters and named according to month. The bird sang different songs. To the princess, the king, and the queen were surprised and delighted to see the bird. एक्चुअली वह राजा और रानी प्रिंसेस के जो मम्मी पापा थे वे जो इनकी आवाज सुने आवाज तो लगा अच्छा लेकिन ये देखना भी चाहते थे उस बर्ड को क्योंकि पहले जो बर्ड था वो तो अब है नहीं द किंग सेड दैट द बर्ड sang much better than the parrots पहले जो पैरट थे इससे तो ये बर्ड जो है बहुत ही अच्छा गाया he also said that he didn't mind to hear the bird sing he had got tired of practicing pretty Polly again and again. उन्होंने कई बार कोशिश किया कि ये सीख जाए लेकिन बार बार सिखाया जा रहा था लेकिन वो ऐसा हो नहीं पा रहा था The princess said that the parrot said in 7 different languages. The king said that they reminded him of his counselor. The princes were vexed at this. The parrots also looked sad, but the bird flew on. It sang like a lark and a nightingale. Yes, the other princess got jealous of Princess September. Other जो राजा की जितनी भी बेटियां थी वह सितंबर से थोड़ी सी जलन होती थी उनको ईर्ष्या हुआ करता था या तो बोलो कि उससे थोड़ी सी तकलीफ हुआ करता था So they went to September. They said that they were sorry for the death of her parrot. She must have a parrot. They had put their pocket money together to buy her the parrot.
बोला कि पैरेट के जाने के गम तो हम लोग को भी है, इससे अच्छा होगा पॉकेट मनी से हम लोग क्या करेंगे, सब मिला करके पैरेट खरीदेंगे। हियरिंग इट, सितंबर थैंक्ड देम, और सितंबर ने अपने जितनी भी सिस्टर थी सबको बोला ओके थैंक यू। शी सेड दैट शी हैड अ पेट बर्ड, इट sang the most charming song to her. She didn't know what she would do with the parrot. The princess said that she was wrong in calling the bird as hers. They remarked that the bird flew in and out just as it liked. They asked her where the bird was at that time. September told them that the bird had gone to its father-in-law. The princess said that it was not likely to come back. If it come back, she should put it into the cage so that वो कभी कभी भागेगा ही नहीं, ऐसा केज में डाल दूंगा कि दोबारा वो कभी रिटर्न बैक नहीं होगा, कहीं जाएगा नहीं। But September replied that she liked to see it fly, like to see it flies. They told her that safety first should be the objective. They went away. Princess September felt uneasy. Now, what happened? Princess September, this is second part of your chapter. Princess September started worrying about her little bird, not about parrot. ये जो उनके दूसरे बर्ड जो उनको आया था, उनके विंडो के थ्रू जो आया था, बैठा करता था, सुनाया करता था, इट मे हैव बीन कॉट इन snares, or the hawks could have caught it, or it would have forgotten her, but she suddenly saw it sitting on her shoulder. वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा है कि सडनली वो उसके पास ही आ गया, बर्ड आ गया, उनके शोल्डर बैठ भी गया। लिटिल बर्ड टोल्ड सितंबर, अब लिटिल बर्ड ने क्या कहा, that its father-in-law was giving a party, all wanted it to stay, so it stayed there. मेरे फादर इन लॉ ने वहां पार्टी दी थी, इसलिए मैं वहां पर लेट से वहां पर था और इसीलिए मैंने वहां रुक गया। प्रिंसेस सितंबर took no chances, she put the bird into the case. लेकिन अब सितंबर के मन में ये आई, यदि मैं इस बर्ड को छोड़ देता हूं तो बर्ड बार बार चले जाता है, so it will be better that keep it into the case. So उसे हम केज में बंद कर दें तो बहुत अच्छा होगा। The bird couldn't believe it. It asked what the jokes. The princess told the bird that it was not a joke. ये जोक नहीं है, मैं आपसे कोई मस्ती ने मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ कि तुम्हें मैं केज में ही डाल दूंगा कि आप बार बार बाहर नहीं जाओगे। कैट्स वर रोमिंग इन द नाइट, रात को कैट्स जो है घूमते रहती है, हो सकता है कि आपको जब मौका मिले उसे कैट को, तो वो क्या करेंगे, आपको खा लेंगे। द बर्ड वुड बी सेफ इन द केज, और केज में बर्ड बहुत ही सेफ रहता है, सो इट विल बी बेटर कि आप भी केज में रहो। द बर्ड sang but it stopped in between. वो गाता तो था लेकिन वो स्टॉप कर दिया बीच में ही। The next morning the bird asked the princess to let it out of the cage, but the princess told it that it was much better where it was. वह बर्ड जो है प्रिंसेस को बोला कि आप मुझे केज के बाहर कर दो, बट प्रिंसेस ने उससे रिप्लाई किया कि आप केज में हो यही सबसे अच्छा है, जो आप बाहर घूमते हो और यहाँ पर आप सेफ भी हो। बट ट्राई टू slip through all the bars of the cage, but he couldn't come out. कोशिश तो बहुत किया। Other the princess came. They told Princess September that the bird would soon get used to the cage, but the bird asked to open the cage. वो बार बार बर्ड यही बोलता रहा कि मुझे केज को ओपन कर दो और मुझे केज से बाहर होने दो। The princess asked the bird to sing. अब बर्ड को फिर बोला गया प्रिंसेस के द्वारा सिंग करने के लिए, गाने के लिए, but the bird said that it could not sing. It wanted to see the trees, the lake and the green rice growing field. ये जो धान के उपजने वाली जितने भी खेत हैं, हरे भरे खेत खलिहान है, ट्रीज है, लेक है, मैं उस सबको दिखना चाहता हूँ, मैं गाऊंगा नहीं। लेकिन वो कैसे दिख पाएगा, जब वो केज से बाहर हो जाएगा। दैट मीन्स यू कैन से कि बर्ड अब प्रिंसेस से रिक्वेस्ट करने लगा कि मुझे केज के बाहर कर दो। The other princess told September to be firm with the word. Now, the next day, Princess September went to the cage. She cried to see the bird as it looked dead, but it was not dead. The princess started weeping. अगले दिन बर्ड ने थोड़ा सा मस्ती किया, मजाक किया, वह डेड बॉडी के तरफ पूरे साइलेंट मोड में अपने आप को पूरे बॉडी को ले डाउन कर दिया। प्रिंसेस जब देखा मॉर्निंग में तो
देखा कि ये बर्ड भी अब नहीं बचे, डेड हो गए, और वो रोने लगी। द बर्ड सेड दैट इट कुड नॉट सिंग अनलेस इट वाज फ्री, और जब तक मुझे आप फ्री नहीं करोगे तब तक मैं केज में गाऊंगा नहीं। एंड इफ इट कुड नॉट सिंग इट वुड डाई। The princess set the bird free. She promised it that she would not put in the case again. The bird replied that it loved the princess. It would come to her. It would sing the loveliest song for her. It would also never forget her. The bird flew away, but the princess was sad. She burst into tears. उनकी आंखों से आंसू की धारें बहने लगी, बहुत आंसू बहाए। लेकिन बर्ड ने बोला कि आप मुझे खोल दो, मुझे जाने दो। और वह गया और वह बोला कि मैं तुमसे बहुत लाइक करता हूँ, और मैं तुम्हें अच्छी से अच्छी बहुत लवली सॉन्ग भी सुनाऊंगा, और मैं कभी आपको भूलूंगा भी नहीं, और मैं जाऊंगा फिर आऊंगा। लेकिन प्रिंसेस तो उन्हें जाने दिया, लेकिन जाने के बाद प्रिंसेस वाज सैड, द बर्स्ट इनटू टीयर्स। वो बहुत ही रोने लगी। अदर प्रिंसेस केम टू नो ऑफ इट। इस चीज के बारे की जानकारी के लिए अदर प्रिंसेस जितने भी थे उनकी सिस्टर्स सब आई। दे मेड फन ऑफ प्रिंसेस सितंबर, सेइंग द बर्ड वुड नेवर रिटर्न। अब प्रिंसेस सितंबर को उनकी सिस्टर ने बताने लगी, मजाक करने लगी और उनकी मजाक उड़ाने लगी कि बर्ड को आपने छोड़ दी हो केस से, लेकिन वो कभी आएगा नहीं। बट द बर्ड रिटर्न्ड, इट सैट ऑन द सितंबर शोल्डर। ये जो सितंबर प्रिंसेस है उनके शोल्डर पे बैठा। इट एट आउट ऑफ हर हैंड, उसके हाथों से वो खाया भी। इट सैंग हर द ब्यूटीफुल सॉन्ग, उन्होंने प्रिंसेस सितंबर के लिए गाना भी गाया। द प्रिंसेस kept a window open day and night. The bird could come and go anytime it liked. और बर्ड के लिए सितंबर, प्रिंसेस सितंबर ने हमेशा विंडो ओपन कर लिया, और सो दैट वो बर्ड कभी भी आ सके और कभी भी जा सके। डे नाइट हमेशा वो विंडो ओपन रहता था कि बर्ड आए और जाए और मुझे फिर वह कोई सॉन्ग सुनाए। द प्रिंसेस ग्रू वेरी ब्यूटीफुली, इस तरह से ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे से प्रिंसेस जो है वो रहने लगी, अपना लाइफ बिताने लगी। द किंग मैरिड हर टू द किंग ऑफ कैम्बोडिया। कैम्बोडिया का राजा से प्रिंसेस के पापा ने, राजा ने शादी भी करवा दिया। सी वॉज कैरिड ऑल द वे टू द सिटी ऑन अ व्हाइट एलिफेंट, बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज ओपन। उनकी जितने भी सिस्टर्स थे, सितंबर, प्रिंसेस सितंबर की जितने भी सिस्टर थे, वे लोग तो नेवर स्लेप्ट, कभी सोती नहीं थी। बट आज वो प्रिंसेस सितंबर जो है बहुत ही खुश है, बहुत ही अच्छे से रह रही है। दे ग्रू वेरी अगली, द किंग मैरिड देम टू हिज काउंसिलर। और जितने भी उनकी राजा का जितनी भी बेटियां थी, सितंबर को छोड़ करके सबको इनके काउंसिलर के से उनको भी शादी करा दिया। दे वर गिवन अ पॉन्ड ऑफ टी एंड अ सिमिस कैट इच। इस तरह से ये कहानी समाप्त भी हुई। और आज कभी भी किसी पे बिलीव करते हैं तो बिल्कुल वो हमें कुछ ना कुछ खुशियां देकर जाता है। थैंक यू सो मच।